Hello student, today we will discuss on limitations of financial accounting. We know that what is meant by financial accounting and we learn what is the financial accounting concept. In our accounting, we learn the financial process of accounting and financial formulation of accounting. Here we will learn limitations of financial accounting. What are the limitations? Limitation it means कुछ चीज़ों को लिमिटेशन रहता है, यानी हमें वो चीज़ें ओवर नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा मॉडिफाई करें, ज़्यादा उसको क्रिएट करें, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करें, जस्टिफाई करें, तो उससे हमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज शोज ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस। हमें पूरा परफॉर्मेंस देखना चाहिए बिजनेस या कंपनी का। जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए हमें फोकस टू ओवरऑल द परफॉर्मेंस। सेकेंड, प्रोवाइड ओनली हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल डेटा पूरा की पूरा मिलना चाहिए। अगर हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास कम रहेगा या कुछ चीज़ें हमें मिली नहीं रहेगी या कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वी हैव टू नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, at that time we take a loss in our company, in our business. So here we have to inform that company's management process is given information of historical data is a fully, उन्होंने हमें पूरी तरह की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। वो हमसे कुछ भी चीज़ें बचाती है, नहीं बताते, तब हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए लिमिटेशंस क्या बताए? लिमिटेशंस यानी मर्यादा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मर्यादा। हिस्टोरिकल डेटा हमें मिलना चाहिए, वो भी लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अगर हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम आगे की चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं फाइनल अकाउंट, you have to tally of your balance sheet. When you tally the balance sheet, at that time you have to given in the problem trial balance and adjustment. After that you have to begin, you have to start, you have to open the trading account, profit and loss account and balance sheet also. Here we want the trial balance and adjustment information for our tally process of the balance sheet. Here also information of financial process we have to complete it. At that time we know the information about historical data of our company's manufacturing product and other information of important information, must information given in the company's work for a completion of financial accounting process or system. Then third point is static in nature. We have to complete a statistical data in our financial accounting, and we studied, we learn how to complete of your balance sheet, how to tally of your balance sheet. We find the first gross profit, then gross profit is always transferred to profit and loss account credit side. Then we have to find the in profit and loss account net profit. Net profit is always transferred to capital balance, add in the capital balance of liability side in a liability side at that time, and then we have to complete a balance sheet tally. So this is the statistical information provide to business and provide to company. Okay, तो कंपनी को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड आफ्टर ऑल कंपनी हैव टू कंप्लीटेड स्टैटिस्टिकल नेचर। अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिले तो हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं, हमारा उसका अकाउंटिंग क्लोज हो सकता है। फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस फिक्सेशन। अगर हमें पिछले साल के, पिछले मंथ के, पिछले वीक के कुछ इन्फॉर्मेशन गलत मिले तो हम प्राइस फिक्सेशन कर नहीं सकेंगे। प्राइस फिक्सेशन करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम उसका स्टैटिस्टिकल नेचर देख सकते हैं, उसी के अंदाज से हम प्राइस फिक्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा इंफॉर्मेशन and other information, statistical calculation is a must for our completion of the target. Hence we have to know information about that at that time our project is a fail. Okay, so at that time your calculation is fail and your financial information is not completion of by the business or company. Then fails to control cost. हमें अपने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हम कितने भी कॉस्ट, अगर किसी एक पर्सन ने
100 रुपये की चीज़ 200 रुपये मिली, 100 रुपीज़ में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसको उन्होंने 200 में परचेस किया, तो एक व्यक्ति परचेस कर सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं परचेस कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे कॉस्ट के ऊपर अगर वो 100 की ही चीज़ है तो हमें वो 100 में ही बेचनी चाहिए। हमें मार्केट में जाके उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कॉस्ट का कंट्रोल करना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल रहेगी तो हमारा आगे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हमारी सेलिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। आपका बजट कैसा है, आपका टारगेट कैसा है, आपकी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मार्केट में सेम प्रोडक्ट की मार्केट में क्या चीज़ की प्राइस है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और उस चीज़ के हिसाब से हमें अपने कॉस्ट के ऊपर, अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। सो अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट, नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर हमें अच्छी तरह से हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो हम उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ये हमारा लिमिटेशन है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ये भी हमारा लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिकल नेचर में हमें कैलकुलेशन करना होगा, ये हमारा लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल डेटा का भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो अगर हमें नहीं मिली तो हम आगे का कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, हमें जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें लिमिटेशन में आती है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सिस्टम फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल इट मीन्स हम अच्छी तरह से उसका मूल्यमापन नहीं कर सकेंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल, अप्राइजल का मीनिंग है मूल्यमापन। अगर हमें अच्छी तरह से मूल्यमापन करना है, हमारी चीज़ को अच्छी तरह से बेचना है, हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल करना है, तो उसका हमें मूल्यमापन अच्छी तरह से करना आना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस हमें अच्छी तरह से देना आना चाहिए। तभी जाके हमारी कुछ चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट का, कॉस्ट का वैल्यूएशन होगा, अप्राइजल परफॉर्मेंस मिलेगा और हम मार्केट में अच्छी तरह से हमारी चीज़ें बेच सकेंगे। इसके लिए हमें कुछ लिमिटेशन है उसका हमें ख्याल करना चाहिए। देन फेल्स टू एनालिसिस लॉसेस। अगर ये सब सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं होगी तो हम अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर सकेंगे और उसमें हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज अ मस्ट फॉर आवर फ्यूचर प्लान। हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन giving the development process in our business or company. So it is the must or it is the best information for our future plan. So it's a necessary part of our business and this is the main limitation of our business or company. That does not provide proper basics of cost comparison. अगर हमें प्रॉपर बेस में कॉस्ट फाइंड करना नहीं आता तो हम उसका कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस हमसे अच्छी तरह से हो सकती है। अगर हमें उनके साथ कंपटीशन में रहना है तो कंपटीशन एक्ट के अनुसार हमें अपने प्रॉपर बेस, हमें अपने प्रोडक्ट का, हमें मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ है अपनी, उसका जो कुछ प्रॉपर बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एडजस्ट करना चाहिए। अगर वो हम अच्छी तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो हम अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से गेन नहीं मिल सकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लिमिटेशंस को फॉलो करना चाहिए। फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा टू मैनेजमेंट को हमें क्या करना चाहिए, डेटा एडिक्वेट, जो उनको सफिशिएंट डेटा है, नेसेसरी डेटा है, नीडेड डेटा है, उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उन्हें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं मैनेजमेंट को अपने, तो उनसे कुछ चीज़ें भूल जा सकती है या उनसे कुछ चीज़ें छूट जा सकती है और इसकी वजह से हमारे बेनिफिट के और हमारे डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आगे का जो लिमिटेशन है उन्होंने बताया है, फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। ओनली इंफॉर्मेशन एडिक्वेट करने का बोला है यहाँ पे। पहले मैनेजमेंट को हमें इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है, प्रोवाइड करनी है, तो उसके हिसाब से हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने को होना चाहिए और बेसिक कॉस्ट जो कंपैरिजन है उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में लाना चाहिए। देन फेल्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। अगर हमारा सब अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, हमारा अच्छी तरह से सब जो काम है वो अच्छी तरह से हम एक मैनेजमेंट प्रोसेस में, सिस्टम में, मेथड्स में या टेक्निक में लाएंगे तो हमारा जो कुछ मैनिपुलेशन फाइनेंशियल अकाउंट है वो पॉसिबल है, अच्छी तरह से हो जाएगा। फेल्स टू एसर्टेन BEP, एसर्टेन
इट मीन्स क्या, जो चीज़ हमें फाइनल करनी है उसको फाइंड आउट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसको एसरटेनमेंट बोलते हैं। हमने कॉस्ट एसरटेनमेंट का प्रॉब्लम देखा है। कॉस्ट एसरटेनमेंट में क्या करते हैं हमें, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस हम 25 बता रहे हैं, तो इसको 25 ही कैसी है इसको वही बताना हमें ज़रूरी है। तब जाके हमें बीईपी कंट्रोल करने को होगा। बीईपी का आपको मालूम है, बीईपी का जो पॉइंट रहता है वो कैसे रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे जो हमारा मिडिल पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, बीईपी पॉइंट, यानी यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना आपका प्राइस है उतने प्राइस में आप इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी सेल प्राइस रहेगी, यहाँ पे आपकी बेसिक कॉस्ट रहेगी। अगर आपको वो चीज़ 20 रुपीज़ में मिल रही है और उसका सेलिंग भी आपने 20 रुपीज़ में किया, तो हियर वी डू नॉट वांट, यू डू नॉट हैव टू प्रॉफिट और लॉस। सो इसे बोलते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, सो दैट इज द बीईपी पॉइंट। और उन्होंने यही बताने की यहाँ पे बताना चाहा है कि फेल्स टू एसरटेन बीईपी, अगर आपकी जो चीज़ है उसको अच्छी तरह से आप कंबाइन करें या उसको अच्छी तरह से मैनिपुलेट करें, तो आपको पॉसिबल है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट ही मिलेगा आपको, लॉस हम नहीं देखेंगे। हर एक बिजनेस का एक एम रहता है कि वो अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसकी वजह से ये सब प्लानिंग वो करते हैं। और ये सब प्लानिंग जो है वो लिमिटेशन में है, तो जो लिमिटेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट करने के लिए रहता है उसे हमें फोकस करना चाहिए, लिमिटेशंस हमें देखनी चाहिए। अगर ये लिमिटेशंस आप क्रॉस करेंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने बीईपी का पॉइंट भी बताया है, बीईपी यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा है लिमिटेशंस के पॉइंट, मैंने यहाँ पे 13 ही लिखे हैं जो आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, उतने मैंने पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अगर पढ़ने रहेंगे लेने रहेंगे तो आप बुक में से ले सकते हैं। वही उन्होंने यहाँ पे फिर रिवाइज किया है कि टेक्निक लिए, मेथड लिए है, और उसको मेथड को टेक्निक को हम अच्छी तरह से हैंडल करेंगे तो अपना मैनेजमेंट या अपना जो डिसीजन है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। हम लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, अपना काम अच्छा तरह से हो जाएगा और हम बिजनेस में डेवलपमेंट पा सकेंगे। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छी तरह से वेल डन हो जाएगा। इसके लिए हमें लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लिमिटेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या, जो उद्देश्य रहता है कंपनी का, बिजनेस का, फाइनेंशियल प्रोसेस में रहता है, कॉस्ट में रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने मीनिंग देखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स, इट मीन्स क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। हमने कल डिफरेंस देखा है तो उसमें हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट हम निकालते हैं, जो कॉस्ट हम तय करते हैं, फाइनली करो उसको प्रोसेस में लाते हैं, फाइनल करते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी कुछ उद्देश्य हमें रखना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट अगर हम सामने रखेंगे, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते टाइम आप क्या सोचते हैं कि ये जो आंसर है वो इजी है या कुछ आंसर हार्ड है, तो उसको आप बार बार दोहराते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको लर्न करते हैं। अगर आप एक चीज़ बार बार करेंगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो चीज़ आपको सीधे और सिंपल से वर्ड में ध्यान में आती है। उसके लिए आपको कोई अलग सी चीज़ या अलग सा कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही आप जैसे पढ़ाई में करते जैसे वैसे ही आपके बिजनेस में या कंपनी में मैन्युफैक्चरर जो करते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट रहता है, उनका ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड पे डिपेंड रहता है। अगर आपने जो कॉस्ट फाइंड आउट की है, वो कॉस्ट जो फाइंड की हुई कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड में लाना है, उसको फॉर्मुलेशन में लाना है, तो उस चीज़ों को भी हमें कुछ उद्देश्य सामने रख के वो चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया है कि एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एसरटेनमेंट यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉस्ट आपको फाइनल करनी पड़ती है, कॉस्ट को फाइनलाइज करना पड़ता है, कॉस्ट फिक्स करनी पड़ती है, और वो फिक्स कॉस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ओवरहेड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उन सारी चीज़ों को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं और उसके हिसाब से हमें कॉस्टिंग या कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़ती है। क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। जो भी चीज़ें हमें एक्सपेंड करनी पड़ती है उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में लाना पड़ता है। बाद में आपकी सेलिंग प्राइस फाइनल होती है, तो उसको एसरटेन करने के लिए हमें कॉस्ट फाइनल करने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान में लाना ज़रूरी है, तभी आपकी चीज़ या आपकी कॉस्ट फाइनलाइज हो सकती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है अपना
कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, हम कॉस्ट पे कंट्रोल करते हैं, हमें कॉस्ट पे कंट्रोल करना आना चाहिए। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना पड़ता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपने किए लेकिन उन चीज़ों का मार्केट में क्या रेट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और उनके हिसाब से हमारा खर्चा कितना आया है ऐसे देख के हमें सेलिंग प्राइस रखनी पड़ती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। मार्केट में इन चीज़ों का मार्केट में जो रेट है वही चीज़ों का हमें रेट रखना पड़ता है। अगर हमारा रेट एक्स्ट्रा रहेगा तो हमारे सेलिंग कम हो जाएगी या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ तो भी हमें जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रहे या उसकी मार्केट में प्राइस रहे, उसका सेलिंग रहे, उसका टेक्निक रहे, मेथड रहे, प्रिंसिपल्स रहे, सब चीज़ों को हमें कंट्रोल में रख के कॉस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट का एसेटलमेंट करते हैं, बाद में उस चीज़ को कॉस्ट को फाइनली फाइंड आउट करते हैं। तो जो फाइनल हम अपनी कॉस्ट की प्राइस लेते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस करते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला है, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, कंट्रोल करते हुए हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। फाइनली हम सेलिंग प्राइस उस चीज़ की क्या होनी चाहिए, कॉस्ट की क्या होनी चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, हमें ध्यान में आता है। बाद में उन्होंने बोला है डिटरमिन प्रोवाइड बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉलिसी, हमें जो भी पॉलिसी अप्लाई करनी है कॉस्ट की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए वो पॉलिसी हमें फिक्स करनी चाहिए, वो पॉलिसी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी हम जाके कॉस्ट की सेलिंग प्राइस अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। देन फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स, हमें जो भी अकाउंट्स क्रिएट करने हैं उनमें फ्रीक्वेंसी लानी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है तो उसको हमें चेंज करना चाहिए और वो सब का रिपोर्ट हमें बना के कंपनी मैनेजमेंट को या कंपनी के ओनर को देना चाहिए। देन टू प्रोवाइड डेटा फॉर कॉस्ट रिडक्शन, अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती रहेगी तो हमें उसमें उसका रिडक्शन करना चाहिए। कॉस्ट की प्रोडक्ट फाइनली फाइंड आउट करते समय अगर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा तो हमें कुछ चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए और कुछ चीज़ें रिड्यूस करके हमारा सेलिंग प्राइस अच्छी तरह से लाने के लिए कॉस्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है अपना रेट ऑफ कॉस्ट या रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मस्ट फॉर आवर बिजनेस डेवलपमेंट, so we have to provide data for cost reduction also. Then preparation of cost estimates, अगर ये हमारा रिडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमें कॉस्ट एस्टिमेट्स यानी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। हम कॉस्ट एस्टिमेट्स करने का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इफिशियंसी, हम उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड मेजरिंग इफिशियंसी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय हमें उसको फॉर्मुलेशन में लाते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखे हमारा उद्देश्य सफल करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट फाइनलाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनका उद्देश्य सामने रखेंगे तो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। आपके ध्यान में आया रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे कंट्रोल में कॉस्ट कंट्रोल करके एसेट करके उसको सेलिंग प्राइस फाइनल करके ऑपरेटिंग पॉलिसी उसकी फाइनल करके उसका रिपोर्ट बना के हम कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फिनिश होता है। यहाँ पे हमने उसके 8 पॉइंट देखे हैं। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसमें लिमिटेशंस और कौन से आने चाहिए। यहाँ पे हमने जो लिमिटेशन देखे वो फाइनेंशियल अकाउंट के थे। फाइनेंशियल अकाउंट में जैसे लिमिटेशन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कॉस्ट में अप्राइजल कैसा करना चाहिए, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस में वो प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन किन चीज़ों में करना चाहिए, ये सब हमने इसमें देखा। स्टैंडर्ड मेजरिंग कॉस्ट हम कैसे रख सकते हैं ये भी हमने इसमें देखा। तो फाइनेंशियल अकाउंट के लिमिटेशंस और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी देखे। आगे के लेक्चर में हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे। सो आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।